السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم و معزز و مکرم سامعین، حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی خصوصی رحمت سے ہم اور آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں۔ یقیناً دور حاضر میں اور پرفتن دور کے اندر اللہ کی طرف سے خیر کی ہدایت ملنا، توفیق ملنا، یہ اللہ کی خصوصی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اور یقیناً اس روئے زمین پر قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند ہو، اور قال اللہ و قال رسول کی صدائے بلند ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر ہم اور آپ عمل پیرا ہوں، یہ اللہ رب العالمین سے ہم سبوں کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام آیت نمبر 71 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 71 کے اندر بیان کیا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کروں جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے اور نہ نقصان۔ ما لا ینفعنا، نفع اردو کے اندر استعمال ہوتا ہے، نفع نقصان، جو نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے، ولا یضرنا، اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ، اور نبی کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے، کیا اس کے بعد ہم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیرانا، اس شخص کی طرح جس کو شیطان زمین میں یا جنگل میں یا صحرا و بیابان میں تنہا چھوڑ دے، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور اس کے دوست اس کو پکارتے ہوں کہ آؤ ہماری طرف، ہدایت یہاں ہے۔ قل، نبی کہہ دیجئے، انا ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اصلی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، نبی کہہ دیجئے کہ مجھے تو صرف حکم ہوا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر خم تسلیم کروں، جھک جاؤ، مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ۔ اس پوری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کے ساتھ ساتھ جس سب سے اہم ٹاپک پر بات کی ہے وہ ہے اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو انداز اپنایا وہ انداز اپنے نبی کے زبانی کہلوا، وہ انداز کیا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کن لوگوں سے؟ جو لوگ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو مشرک ہے، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے جو شرک میں ملوث ہے، انوالو ہے۔ کیا کہنا ہے کہ کیا تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کو پکارتے ہو جو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان؟ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے، اور یہ صرف زبانی لفظ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، یہ اعتقادی الفاظ ہے۔ اعتقاد یعنی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ ہمارے نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت آسان لفظ ہے، اب اس کو اور اچھے سے سمجھیے کہ جب تک اللہ ہمیں نفع پہنچانا نہ چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور جب تک اللہ ہمیں نقصان نہ پہنچانا چاہے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اور آسان ہو گیا، اس کو تشریح کہتے ہیں ڈیٹیل میں اور بیان کر دیں گے۔ اب یہ عقیدہ کہاں ہے مسلمانوں کے اندر؟
ऐसा अकीदा मुसलमानों में कहाँ पाया जाता है कि हमारे पास जो आसानियाँ वो अल्लाह की तरफ से हैं, हमारे पास जो परेशानियाँ हैं वो अल्लाह की तरफ से हैं। ये अकीदा कहाँ रहा है? आप इसकी मिसाल लेंगे तो दौर हाजिर के अंदर बहुत से ऐसे मनाजिर देखने में आते हैं कि एक इंसान कड़ी मेहनत कड़ी मशक्क़त करके बहुत अनथक मेहनत करता है, कोई दो राय नहीं। या ये कह सकते हैं कि अपने बचपने से वो परेशानी को उठाया है। ऐसे वक्त में ना बाप का सहारा था, ना भाई का सहारा था, ना किसी का सहारा था, खुद स्टेबल हुआ है, खुद अपने आप को खड़ा किया है और एक मकाम हासिल किया है। आप जब उनसे पूछे तो कहेंगे यही बात कि हाँ हमने बड़ी मशक्क़तें उठाई। लेकिन आप एक मोमिन से मिलेंगे जो बचपन में यतीम था, जिसने अल्लाह की रहमत और फजल से अपने आप को उस काबिल बनाया। आप उससे पूछेंगे कि भाई आप इस मकाम पर कैसे पहुँचे, तो कहेगा अल्लाह ने पहुँचाया। ये फ़र्क है, ये बुनियादी फ़र्क है। और ऐसा माहौल है आजकल। कोई लड़का कामयाब हो जाता है, आप उसके वालिद से मिलिए, पेरेंट्स से, मेरा बच्चा बहुत मेहनत किया है, क्या बताएं, अल्लाह का जिक्र बाद में, अल्लाह का जिक्र बाद में, मेरे बच्चे ने बड़ी मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। जबकि क्या जुमला होना चाहिए मोमिन को, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चे को उस काबिल बनाया। फ़र्क होगा, दोनों जुमला फ़र्क है, अकीदे का फ़र्क है, बेसिक फ़र्क। हम अपनी मेहनत को अल्लाह के सुपुर्द करें, क्योंकि जब तक उसकी रहमत नहीं होगी कामयाबी नहीं मिल सकती। एक आदमी दिन भर मेहनत करे, अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो 1 रुपया नहीं कमा सकता। और एक आदमी घर में बैठा अल्लाह ने चाहा तो लाख रुपया कमाएगा, हर आदमी जानता है। तो अकायद में, अकीदत में बहुत खराबियाँ, बहुत बिगाड़ पैदा हुई है मौजूदा ज़माने के अंदर। और ये असल चीज़ है कि अगर हमने अपने अकायद को दुरुस्त नहीं रखा तो हम समझ जाए कि अल्लाह से हम खैर की उम्मीद नहीं कर सकते। अकीदे बहुत ज़रूरी है। आप देखें मुशरिकीन मक्का जिन चीज़ों की इबादत करते थे वो बुत थे, जिसको हम लोग आज के ज़ुबान में वो कहते हैं ना, पत्थर से तराशे हुए या मिट्टी से बनाए हुए, वो बुत थे। इतना खौफ रखते थे उनसे, इतना खौफ रखते थे कि उनकी तौहीन को भी वो ना बर्दाश्त करते थे और ना पसंद करते थे, जबकि वो बुत है, उसके अंदर कुछ नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर आए, आपकी बेइज्जत हुई, नबूवत रिसालत आपको मिली, तो आपने जो काम किया दावत का, तो दावत का काम क्या था, वो तौहीद थी कि जहाँ पे लोग बारिश का खुदा बनाए हुए हैं, तजारत का यानी बिजनेस का हमारा अलग खुदा है, औलाद देने का अलग खुदा है, हमारे अमन व अमान का अलग खुदा है जो सुकून देगा, अमन व अमान देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये पहली तालीम थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहली तालीम किसके खिलाफ थी, किसके अगेंस्ट में थी, शिर्क के। आपने पहले ये नहीं कहा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, शराब मत पियो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, ये सारी चीज़ें बाद में। पहली मर्तबा अल्लाह के नबी ने मक्का वालों को जो दावत दीन दिया वो क्या था, कुलू कहो, कुलू मतलब कहो, क्या कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। ये असल चीज़ थी, ये असल चीज़ थी। और अल्फाज की अदायगी में मेरे भाई अकायद के एतबार से हमेशा मोहतात रहना चाहिए। एक मोमिन को आप जब एक मोमिन, सच्चे मोमिन से मिलेंगे, अगर कलाम करते हुए, बात करते हुए, कन्वर्सेशन करते हुए, गुफ्तगू करते हुए अगर कोई ऐसा वर्ड निकल जाता है तो शायद हम लोग को खराब नहीं लगती, उसके दिल और उसकी ईमान को खराब लग जाता है कि मैंने क्या क्या कर दिया। मिसाल के तौर पर एक आदमी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने घर बनाया हुआ था, तो हम ही ने पूछ लिया कि माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन घर बनाया है आपने। कहाँ, पिछले साल तो हम बनाए, बस बना को चुप हो गए, नहीं अल्लाह के फजल से बन गया पिछले साल। इस जुमले पे उन्होंने को शर्मिंदा हो कि हम पिछले साल बनाएंगे, फिर बोले नहीं अल्लाह ताला ने पिछले साल बनना है। उनको खराब लगा कि हम कौन होते बनवाने वाले, हमारी क्या ताकत है, हम तो मर जाएंगे तो अपने आप गुस्ल नहीं दे पाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, कौन नहला रहा है कि नहीं नहला रहा है, दफना रहा है कि जला रहा है, हमको कुछ नहीं मालूम। बेबस है इंसान, पैदा भी होते हैं बेबस रहते हैं, कमज़ोर, पैदाइश भी कमज़ोरी के आलम में होती है और खात्मा भी कमज़ोरी के आलम में। ये अल्लाह इसलिए कमज़ोरी देता है बताने के लिए ताकतवर अल्लाह है। पैदाइश के बाद जो ताकत आती किसने दिया, अल्लाह ने दिया। तो अकायद के एतबार से हमेशा एक बात याद रखिए कि जो लफ्ज़ हम बोल रहे हैं उस पर हमेशा ध्यान दें, कहीं उसमें अना तो नहीं, तकब्बुर तो नहीं, गुरूर तो नहीं, घमंड तो नहीं, ये सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और उससे भी बड़ी बात ये है कि कहीं अल्लाह की शान में गुस्ताखी तो नहीं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहा कि ए नबी, आप कहीं नबी के जुबान कहलवाए, आप कहेंगे क्या तुम ये चाहते हो कि हम अल्लाह के अलावा ऐसे लोगों को पुकारें
जो ना माला यनफउना, जो ना हमें नफा पहुंचा सकते, वला यजुर्रुना, ना हमें नुकसान पहुंचा सकते, नुरद्दु, और हम लौट जाएं, अला अकाबिना, अपने एड़ियों के बल। जाहिर बात है कि ऐसे हम लोग खड़े हैं, एड़ी पीछे है ना, तो लौटे मतलब बैक हो गए, पीछे की तरफ आ गए, जहाँ एड़ी उधर चलाएं, उसको लौटना कहते हैं। अरबी ग्रामर है, आकाब उसी को कहा जाता है एड़ी। तो ऐ नबी आप कह दीजिए, क्या हम अपने एड़ियों के बल लौट जाए बाद इस हदान अल्लाह ताला की हिदायत के बाद? इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ताला की हिदायत के बाद हम अपनी एड़ियों के बल लौट जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि जब तक अल्लाह की हिदायत नहीं आई थी, अब तो शिर्क की हालत में थे, तो लौट रहे हैं। लौटना किसको बोलते हैं? ये हमारा पुराना घर है और हमने नया घर आसन बनवा लिया, तब कह रहे हैं कि आप लौट जाइए पिछले घर की तरह। इसका मतलब पुराना घर है कहीं पे, तो कहाँ लौटेंगे? पुराने घर में मतलब यहाँ लौटना है। तो अल्लाह ने कहा कि नबी कहिए, क्या हम अपने एड़ियों के बल लौट जाए? एड़ियों के बल, एड़ियों के बल इसलिए अरबी में इस्तेमाल होता है कि बिल्कुल एड़ी से घुमाते जाइए, उसको घुमाइए और बिल्कुल इसी तरह चलना भी नहीं पड़ेगा। ये बड़ा खतरनाक होता है लौटना, किसी इंसान को गिरने का खतरा है, गिरने का खतरा है। लौटना मतलब कि आप कर लीजिए, घूमिए, यूटर्न लीजिए, लेकिन एड़ियों के बल मतलब एड़ी को घुमाना है, जिससे बॉडी पूरा हरकत करके मूव करके पीछे आए। अल्लाह ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान के अंदर कि नबी कही, क्या हम अपनी एड़ियों के बल लौट जाए? जबकि अल्लाह ने हमें हिदायतें दी। यानी हिदायत इतना कीमती सरमाया है कि बड़े बड़े पैसे वाले आज दुनिया के अंदर उनके पास हिदायत नहीं है, मिलियनियर है, बिलियनियर है, लेकिन उनके पास हिदायत नहीं है। कितनी कीमती चीज़ है और वो खरीद नहीं पाएंगे, उनके पास उस पैसे में वो ताकत नहीं को वो हिदायत खरीदेंगे। ताकत उस पैसे, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग खरीद सकते हैं, बड़े बड़े शहर खरीद सकते हैं, बड़े बड़े क्या है विला खरीद सकते हैं, लेकिन वो हिदायत नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये कंट्रोल अल्लाह के हाथ में, किसको हिदायत देना है किसको नहीं देना है। और अल्लाह ताला ने यही अंदाज नबी से कहकर कहलवाया, क्या तुम ये चाहते हो तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसे प्रभु की बात करें, नफा दे सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, और अल्लाह ने जो हिदायत दी उसको हम लौट जाएं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया, मिसाल, कुरान मिसाल भी बयान करता है। कल लजिस्तहवतहु शयातीन फिल अर्ज़, उस शख्स की तरह जिसको शैतान एक जंगल में छोड़ दिया। अब एक आदमी को जंगल में छोड़ दिया गया, बे यारो मददगार, आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दौड़ रहा है, इधर जाना से जाहिर है, उधर जाहिर, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई किनारा नजर नहीं आ रहा, कोई बस्ती नजर नहीं आ रही, हैरान और परेशान। लफ्ज़ हैरान को भी इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। अल्लाह ने कहा कल लजिस्तहवतहु शयातीन फिल अर्ज़ हैरान, यहाँ छोड़ के हैरान परेशान हो गया। लहू अस्हाबु यदऊनहु इलल हुदा, अब उसके दोस्त कहीं से देख लेते हैं कि मेरा दोस्त जंगल में भटक रहा है, वो आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ, हिदायत यहाँ पे है। अब वो कन्फ्यूज है कि मेरे दोस्त हैं कि कौन है, दुश्मन है, कौन आवाज़ दे रहा है, कन्फ्यूज है, उसको नजर नहीं रहा सही तौर पे जो बुलाने वाला अपना है कि बेगाना है। कुल नबी कहिए, इन्ना हुदल्लाहि हुल हुदा, बेशक असली हिदायत वो जो अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह जो हिदायत देता है वही असली हिदायत है। वो उमिरना लिनुसल्लिम लिरब्बिल आलमीन, और नबी आप कहिए कि मुझे तो हुक्म हुआ है कि अल्लाह के सामने हम मुत्ती और फरमाबरदार होंगे। नबी को हुक्म हुआ है कि पैगंबर आप अल्लाह के सामने मुत्ती और फरमाबरदार होंगे। इतनी लंबी चौड़ी आयत में अल्लाह ने इशराक बिल्लाह, यानी अल्लाह के साथ शिर्क किया जाता है ना, उसकी ममानियत बयान की कि अगर शिर्क के आलम में किसी की इंतकाल हो जाए, कोई फौत हो जाए, कोई दुनिया से चला जाए, तो ये वो गुनाह है जिसकी बख्शिश नहीं, अल्लाह जिसको माफ़ नहीं करता। इतना खतरनाक, इतना बड़ा क्राइम और इतना बड़ा जुर्म है। उसके बाद अल्लाह ने आयत नंबर 72 के अंदर बयान किया, वनक़ीमुस्सलात वत्तक़ूहु, वक़ीमुस्सलात, और नमाज को कायम करो, वत्तक़ू, और उससे डरो। अब देखिए यहाँ पे बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक आदमी दावत में गया हुआ है, खाना खा लिया, उससे कहा जा रहा है खाना खाओ, अजीब बात नहीं, हम ही उसको बैठा है, बेटी यहाँ खा लीजिए, खा लीजिए, अब उसे कहे खाना खाओ, तो आदमी का पागल हो गया, बैठाया खुद ही, दावत खुद ही दिया हुआ है, इसी के यहाँ आए हुए हैं, खाना सामने ही खा लिया और कह रहा खाओ। लेकिन अल्लाह यह कह रहा है, इसमें हैरानी की बात नहीं, अल्लाह कह रहा है वअक़ीमुस्सलात, और नमाज को कायम करो। अच्छा, नमाज कायम का मतलब कि अल्लाह डरना ना हुआ, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह का खौफ है, किसी से पूछा जाए नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह का हुक्म है कि नमाज पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या होगा, नाराज हो जाएगा। तो जब अक़ीमुस्सलात आ गए तो वत्तक़ू क्यों अल्लाह ने कहा, और उससे डरो। अरे डर रहे तभी तो नमाज पढ़ रहे हैं। कोई भी मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, जो भी दुनिया के जिस कोने में, तो नमाज क्यों पढ़ रहा है? डर की वजह से कि अल्लाह ने का हुक्म है कि करो ये काम, और उसमें एक नमाज है, नमाज करने वाली चीज़ है, पढ़ने वाली चीज़ है, पढ़ रहा है।
अल्लाह ने कहा अकीमुस्सलात वत्तकू, और ये कि अल्लाह नमाज कायम करो और उससे डरो। जानते इसमें क्या सबसे बड़ा मैसेज है? नमाज एक इबादत है। क्या है? इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाएगी। सजदा नमाज में करते हैं ना अल्लाह के लिए। वत्तकू, उससे डरो। अन अकीमुस्सलात वत्तकू, और नमाज को कायम करो और उससे डरो। ये बात अल्लाह भी जानता है कि जो नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह से डरते तो ही पढ़ते हैं, लेकिन ये बात दुनिया में क्लियर नहीं है, क्योंकि जो नमाज पढ़ते वो भी शिर्क कर रहे हैं आजकल। वो भी तो कर रहे हैं ना शिर्क, पक्के सच्चे नमाजी है और मुशरिक है, उनका अकीदा बिगड़ा हुआ है। तो अल्लाह कह रहा है उसी से डरने का मतलब ये कि इबादत उसी के लिए होनी चाहिए। इबादत की जितनी किस्में हैं, जितने अक़साम इबादत के, चाहे रोजा भी एक इबादत है अल्लाह के लिए, ज़कात इबादत है अल्लाह के लिए, कुर्बानी इबादत है अल्लाह के लिए, है कि नहीं? सारी इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होनी चाहिए। इबादत के जितने अक़साम हैं सारे अक़साम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होने चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं, किसी की इबादत दुरुस्त नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा वन अकीमुस्सलात वत्तकू, और ये कि नमाज को कायम करो और उससे डरो। फिर आगे अल्लाह ने कहा व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून। तुहशरून का मतलब क्या होता है? हशर यहशुर का मतलब होता है लौटना। अल्लाह कह रहा है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। मजहूल का सेगा है, मारूफ का सेगा नहीं है। लौटाए जाओगे, तुम सब किसकी तरफ लौटाए जाओगे? अल्लाह की तरफ। तो और भयंकर बात है, और भयंकर बात, जैसे मान लीजिए कि एक उस्ताद है, पढ़ा रहा है बच्चों को। बच्चे को जब मारने की बारी, उस्ताद बच्चा भाग गया, भाग जा रहा वहाँ पे। उस्ताद नहीं चाहता उठे कुर्सी से, जब माने जाता भाग जा रहा वहाँ पे। उस्ताद कहता जाओ ना, भागो ना। जाओगे कहाँ? कल तो आइए करोगे, बोलते हैं ना चलो शुरू आज भाग जाओ, कल तो आना ही पड़ेगा। गार्जियन को कॉल करेंगे, उठा के लाए, तब क्या करोगे? तो भाग को भी फायदा नहीं। अरे आज ना बच गए, कल तो बचेंगे। वक्ती तौर पे तो हम बच गए, रिलीफ मिल गया, चलो आज मार नहीं खाएं, कल तो और गुस्सा में पिटेंगे और गुस्सा होगा, आज ही मार खा जाते हैं। अल्लाह कह रहा है वही वो ज़ात है इलैहि तुहशरून, जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओ। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने मंजिल का पता है, तो रास्ता क्यों भटके? हमें पता है कि हमारी मंजिल कहाँ है। सफ़र जब करते हैं, यहाँ से कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, तो टारगेट रहता है ना मंजिल, कहाँ जा रहे हैं, तो वही ट्रेन पकड़ते हैं। दिल्ली जाना तो कौन सी गाड़ी यहाँ से दिल्ली जाती हुई ना गाड़ी पकड़ते हैं, कि बेंगलोर की गाड़ी पकड़ लेते हैं, गलत गाड़ी नहीं पकड़ते। अगर इनकेस हड़बड़ी में गलत गाड़ी चढ़ गए तो मालूम होते ही हम फ़ौरन जहाँ पे वहाँ छोड़ देते उसको, ताकि वहाँ से सही गाड़ी मिल जाए। अल्लाह की तरफ लौट के जाना ही है, तो क्यों अल्लाह से हम भाग रहे हैं? पहली चीज़ नंबर 1। एक नंबर क्या बात है कि जब पता है कि मर के अल्लाह ही के पास जाना, तो भागने का मतलब। दूसरा नंबर 2 क्या है कि अगर मान के भाग ही रहे हैं तो कब तक भागें? और हम तौबा करें, बैक हो, लौटे अल्लाह की तरफ, उसी के पास जाना है। कोई चारा भी नहीं है, कोई बचाने वाला भी नहीं है, कोई बचाएगा भी नहीं। वहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कल बरोज़ क़यामत। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि जब अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है, तो कितने भी हीले बहाने हम दुनिया के अंदर बना लें, कुछ काम नहीं आने वाला। ये कुछ वक्त के लिए दिल को तसल्ली दे सकता है, इत्मीनान दे सकता है, लेकिन इससे बचाव नहीं है। अल्लाह ताला इससे बख्शेगा नहीं और उसके लिए सज़ा मुकर्रर है। उसके बाद आयत नंबर 73 सूरतुल अनाम, आयत नंबर 73, अल्लाह ने कहा वह हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, वही वो ज़ात है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया बिल हक़, हक़ के साथ। बरहक़ सुखाया जाता है, सुखाया जाता है ना, कोई सामान हम खरीदते हैं तो उस सामान की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करते हैं, भाई कंपनी का है कि नहीं, प्योर हम चाहते हैं। दूध भी चाहे तो खालिश चाहते हैं, गाय और भैंस के थन से, बकरी के थन से निकले और उससे हमको मिल जाए। अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल इसी तरीके से यह खालिश ज़मीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। ये नाहक नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं, हक़ के साथ अल्लाह ने पैदा, यानी ये बरहक़ है। इसका मतलब कि अल्लाह का वजूद है, अभी ज़मीन आसमान है। ज़मीन आसमानी इस बात के सबूत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजूद है, अल्लाह मौजूद है। अब देखिए अल्लाह ताला किसी काम को कैसे करता है। यौमा, जिस दिन यक़ूलु, अल्लाह कहेगा कुन, हो जाओ, और यकुन, तो हो जाएगा, हो जाएगा। मिसाल के तौर पे जैसे मान लीजिए बिल्डिंग है, अब इसको ऊंचा करना है, तो आजकल इंजीनियरिंग ने काफ़ी तरक्की की है, नीचे में क्या क्या लगा कर बिल्डिंग उठा दिया जाए जमीन से, तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन टाइम लगता है।
अल्लाह ने कहेगा हो जाता हो जाता। सूर पहाड़ को उठा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, पढ़े ना पीछे आयत के अंदर। अल्लाह किसी भी काम को करना चाहता है सीधे लफ्ज कहता है कुन, अरबी में लफ्ज कुन का मतलब होता है हो जा। मान लीजिए उर्दू में अगर हम बोले अल्लाह कहता है हो जाता हो जाता है, फयकुन तो हो जाता है, बस इतना ही हो गया। अल्लाह ने कहा कि जमीन धंसा तो नीचे गिर जाएगा, बस हो गया, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगेगा। तो इतना पावरफुल अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारी ताकत सारी कुव्वत सारी तवानाई अल्लाह के पास है, इंसान के पास कुछ नहीं। तो फिर क्यों हम अल्लाह ताला के रास्ते से भटके हुए, फिर क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम नाफरमानियाँ कर रहे हैं, फिर क्यों अल्लाह से लौ नहीं लगा रहे हैं, अल्लाह से दूरी बनाए हुए हैं, डिस्टेंस बनाए हुए हैं। आखिर क्यों? जाना उसी के पास है, मरना हक है, मरने के बाद हिसाब किताब देना है, हिसाब किताब के बाद जन्नत जहन्नम के फैसले होंगे, सब कुछ तो उसके हाथों में, कोई चीज़ उसके इख्तियार से बाहर नहीं है। इसलिए अल्लाह को मुख्तार कुल कहा जाता है, तमाम चीज़ों का इख्तियार। मुख्तार किससे है? इख्तियार से। तमाम चीज़ों का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है। उसी आयत में अल्लाह ने कहा कौल हक, उसका कहना हक है। उसका कौल क्या है? हक है। अल्लाह का कौल क्या है? कुरान। ये पूरा कुरान किसका कौल है? इसका कलाम है। इसीलिए हम उसको कलाम इलाही कहते हैं। कुरान को कलाम इलाही क्यों कहते हैं? इलाही मतलब अल्लाह, अल्लाह वाला, अल्लाह का कलाम, कलाम अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह का कलाम। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है कुरान, अल हक, हक है, इसमें शक शुबा नहीं कर सकते। शक मतलब ईमान की कमजोरी। अल्लाह का कौल हक है। वल्लाहुल मुल्कु यौमा युनफखु फिस्सूर, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा उस दिन का मालिक भी अल्लाह है। मालूम है ना, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। रिवायत के अंदर आता है कि 2 बार सूर फूकेंगे। पहली बार सूर फूकेंगे तो सारे लोग मर जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे, और दूसरी बार सूर फूकेंगे तो लोग क्या है, अपने कब्रों से निकल खड़े होकर कहाँ चले जाएंगे? मैदान महशर। एक रिवायत में अंदर आता है कि 3 बार सूर फूकेंगे। एक सूर फूकेंगे तो लोग क्या है, मर जाएंगे, दूसरी सूर फूकेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, तीसरी सूर फूकेंगे तो उठकर कहाँ चले जाएंगे? अल्लाह के पास चले जाएंगे। देखिए सूर तो फूका जाएगा, जिस दिन सूर फूका जाएगा उस दिन का मालिक है अल्लाह। अल्लाह ने कहा वल्लाहुल मुल्क, बादशाहत उसी के लिए है। यौमा, जिस दिन युनफखु फिस्सूर, सूर में फूंक मारी जाएगी, जिस दिन सूर फूका जाएगा। आलिमुल गैबि वश्शहादा, जो जाहिर है उसको अल्लाह जानने वाला है। जिस हम लोग बैठे हुए अल्लाह जान रहे हैं, हम हैं, आप है, सब हैं, कितने लोग हैं, क्या है, क्या हो रहा है। आलिमुल गैब, गैब को भी अल्लाह जानता है। गैब तो छुपी हुई चीज़ जिसको हम नहीं जानते, वो जानता है। अभी कल क्या होने वाला है हमको मालूम है, लेकिन उसको मालूम, अल्लाह को मालूम। हम में से हर एक की ज़िंदगी कितने साल की है कोई जानता है? कौन किस साल मरने वाला है कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह जानता है, अल्लाह को पता है। आलिमुल गैब वश्शहादा, जाहिर, शहादत कहते जाहिरी चीज़ों को, गैब कहते छुपी हुई चीज़ों को। जाहिर और बातिन तमाम चीज़ों का जानने वाला है। वह हुवल हकीमुल खबीर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी हिकमत वाला, बड़ी खबर वाला, हर चीज़ का खबर है अल्लाह के पास। अल्लाह के पास हमारे एक एक अमल की खबर है। हम ये समझ रहे हैं कि रात के अंधेरे में कुछ कर दिया हमने, कौन जान रहा है? हम तो अकेले थे, कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह को तारीकी के चीज़ें भी नज़र आती है, वैसे जैसे उजाले में देखता है ना। हम अंधेरे में नहीं देख पाएंगे, हमारे आँख में क्वालिटी नहीं, लेकिन अल्लाह की शान ये है कि समंदर की गहराई की खबरें अल्लाह को मालूम है कि समंदर के अंदर क्या एक्टिविटी है। ज़मीन की गहराई की अल्लाह को खबरें हैं, ज़मीन के अंदर क्या क्या दफन है। आसमानों के ऊपर क्या अल्लाह जानता है, ज़मीन के ऊपर क्या अल्लाह जानता है। अल्लाह के पास हर चीज़ की खबर है। वो हकीम है, हिकमत वाला है, खबीर है। हिकमत इसलिए अल्लाह को कहा जाता है कि आज अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे लिए हालात बड़े ख़राब और बदतर होते चले जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है, हम लोग तो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान का दर्स करवाते हैं, रोज़ा रखते हैं, हलाल चीज़ें खाते हैं, हराम चीज़ों से परहेज़ करते हैं, तो फिर क्यों ऐसे हालात हमारे लिए ख़राब हो गए मुसलमानों के लिए? तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह हकीम है, वो हिकमत है, वही जानता है, कि उसको पता है। हम लोग सब जान जाएंगे तो हम हकीम नहीं हो जाएंगे, है ना। वो उर्दू वाला हकीम नहीं जो इलाज वाला होता है, वो नहीं, ये हिकमत वाला हकीम। तो अल्लाह हकीम है। हमें लग रहा है कि हालात हमारे खिलाफ है, क्यों है अल्लाह बेहतर जानता है। और हमेशा एक मोमिन शर में खैर तलाश करता है। मोमिन की आदत क्या होती है, मोमिन के आलम क्या होते हैं कि मोमिन होता है वो बुरे से बुरे हालात में अच्छी चीज़ों को तलाश करता है। एक बार तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी, सही बुखारी की रिवायत है, शुरू इस्लाम में इतना परेशान किया गया सहाबा को, मक्के के अंदर बड़ी परेशानी थी, बड़ी परेशानी के आलम में थी।
अभी हिजरत का हुक्म नहीं हुआ था, पर साहबा परेशान हो गए। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह, कब अल्लाह की मदद आएगी। तंग आ गए थे परेशानियों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस जुमले पर गुस्सा हो, आपने कहा कि तुम अल्लाह की तरफ से मदद मांग रहे हो, जबकि तुम्हारे पास वो मुसीबतें नहीं आई तुमसे पहले कि नबियों के ऊपर आई थी। यानी अभी तक तुम वो चीज़ नहीं देखे हो, तुम इतने में घबरा गए, इतने में घबरा गए। हालांकि अभी तुम्हारे पास वो परेशानी नहीं आई है कि तुमसे पहले की कौमों के ऊपर आई, पहले के नबियों के ऊपर जो आई। तुम घबरा गए, अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह कब ये चीज़ें खत्म होंगी। जैसे आज हम लोग का हालत है, तो घबराए हुए हैं, क्योंकि आराम परस्त हम हो गए ना। अब तक तो हमको हर चीज़ आराम से मिला है, परेशानी कभी देखे नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान की ज़िंदगी मुसीबत का आना बहुत ज़रूरी है। मुसीबत उसको प्रैक्टिस करवाता है कि हालात ख़राब हो तो कैसे रहना है। और जो नाज नखरों से पला वो उसको तो मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, कभी परेशानी देखा ही नहीं, वो जी नहीं पाएगा। तो मुसीबत अच्छी चीज़ है, इंसान को मजबूत बनाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, सहाबी रसूल से, कि तुम परेशान हो गए, हालांकि तुम्हारे पास अभी वो मुसीबत नहीं आई है जो तुमसे पहले की कौमों के ऊपर आई, तब जाकर ठंडा हुए। यानी जो मशा पर हालांकि परेशानी थी साहबा के साथ, आपको मालूम है 3 साल तक गाय में कैद रहे, मक्का उन्होंने बाइकआउट कर लिया था, ना कोई किसी से रिलेशन रखेगा, ना कोई सामान इसको बेचेगा, ना इससे खरीदेगा इन लोगों से। हर तरह का सामाजिक बाइकआउट हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? 3 साल तक आप लोग गार में रहे, 3 साल तक पत्ते चुस चुस कर प्यास बुझाते थे। जो जानवर ले गए थे उसको जमा करके चमड़े चूसते थे, एक साथ चूसते थे चमड़े, प्यास बुझाते। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। अच्छा कांच पूरा ऐसे आएगा, आपका टेस्ट समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है खाने, आसान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वह हकीमुल खबीर, अल्लाह बड़ी हिकमत वाला और सारी चीज़ों का खबर रखने वाला है। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। और चूँकि 1 या 2 दिन के बाद हम लोग भी जिलहिज्जा के महीने में आ जाएंगे, तो जो जिलहिज्जा के महीने में हज के जो सारे मामलात हैं, कुर्बानी के मामलात हैं, वो इसी महीने में अदा किए जाते हैं। और ये सारी चीज़ें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई हैं। अल्लाह ने कहा आयत नंबर 74 में, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़रा, और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, आज़र उनके अब्बा का नाम था, क्या कहा अपने बाप से, क्योंकि उनके बाप आज़र जो थे वो मुशरिक थे, मुसलमान ना थे, और बुतों की इबादत करते थे, अपने हाथों से तराशे बुतों की इबादत करते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस चीज़ को नागवार समझते थे, नापसंद समझते थे। आप इस चीज़ को जानते थे कि अल्लाह ताला हम लोगों की इबादत का अकेला तन्हा मुस्तहिक है और इसके अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं। लेकिन वो अभी तक रूबरू नहीं हो पाए थे अल्लाह से। लेकिन जो दिल में जो अल्लाह ने उनकी जो कशिश पैदा की थी, उस बुनियाद को जानते थे कि अल्लाह कैसा होगा, लेकिन कन्फर्म नहीं थे। अब उन्होंने अपने बाप को देखा, बुनाते तो कहा वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र, उन्होंने अपने बाप आज़र से कहा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहतन, ऐ अब्बाजान क्या आप बुतों को माबूद मानते हैं, माबूद बनाते हैं, अतत्तखिज़ु माबूद बनाते हैं। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, बेशक मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देख रहा हूँ। आप ऐसी वैसी गुमराही में नहीं है, ओपनली गुमराही में मैं आपको और आपकी कौम को देख रहा हूँ कि खुलेआम गुमराही, हम कहते हैं ना खुलेआम जुर्म हो रहा है, बोलते हैं ना, कोई कैद नहीं, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। वही अंदाज है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि मैं खुली गुमराही में आपको और आपकी कौम को, दोनों को, सिर्फ आपको नहीं, दोनों को देख रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ने कहा आयत नंबर 75 में, वो कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़, और इसी तरह हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान की बादशाहत दिखाई, यानी अल्लाह बादशाह है जमीन और आसमान का। वलियकुन मिनल मुक़िनीन, ताकि वो मुकम्मल यकीन वाले हो जाए, यकीन से मुक़िनीन, मुकम्मल यकीन हो जाए कि हाँ रुबूबियत उलूहियत ये सब अल्लाह की सिफत है ना, ये सब अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने दिखाया उनको जमीन आसमान बादशाह।
अब जो है ये तलाश में चले गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ठीक है हमने तो कह दिया अपने बाप से कि आप जो चीज़ बना रहे हैं बुद्ध जिसकी इबादत कर रहे हैं जिसको अपना इलाह यानी खुदा मान रहे हैं अल्लाह मान रहे हैं ये तो जायज़ नहीं है दुरुस्त नहीं है ये तो शिरक है। लेकिन सवाल ये कि खुदा है क्या अल्लाह कहाँ है अभी तलाश में निकल गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा आयत नंबर 76 76 में सूरह नाम फलम्मा जन्ना अलैहि लैल जब रात आई रा कौकबन तो उन्होंने सितारों को देखा है ना स्टार जिसको सितारों को देखा काला कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजा रब्बी ये मेरा रब है। अब ये अल्लाह को तलाश कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम अल्लाह कौन है लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिन चीज़ों के बारे में वो समझ रहे हैं उन चीज़ों से पाक है अल्लाह ताला। अब रात का टाइम है सितारा देख रहे हैं देखने के बाद बड़े यही रब होगा अच्छा चमक रहा है बड़े खूबसूरत नजर आ रहा है लाइट्स टिमटिमा रहा है। काला हाजा रब ये मेरा रब है फलम्मा अफला जब सुबह हुई सितारे डूब गए। अब कहाँ गया रब भाई रब ऐसा है कि 24 घंटे अपने बंदों के साथ रहे है ना रात में तो था सुबह में कहाँ चले गए फलम्मा अफला जब गुरूब हो गया काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ला उहिब्बुल आफिलीन मैं गुरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता पसंद नहीं करता ये खुद वही कह रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद आयत नंबर 77 अल्लाह ने कहा फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन जब चांद को चमकते हुए देखा फिर रात हुई तो चांद को देख कमर कहते हैं चांद को उसी से आता है कमरी महीना चांद के साथ महीना चेंज होता है। जब चांद को देखा चमकते हुए काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाज़ा रब्बी ये मेरा रब है ये तो डेफिनेटली दम रब है शक नहीं। फलम्मा अफला जब ये भी ग्रुप हो गया काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इल्लम यहदिनी रब्बी ला अकुनन्ना मिनल कौमि ज़ालिमीन अगर मेरा रब मुझे हिदायत नहीं देगा तो मैं जालिम कौम में से हो जाऊंगा मैं गुमराह कौम में से हो जाऊंगा। अगर अल्लाह ने मुझे हिदायत नहीं दी कन्फ्यूज हो जाएगा। सितारे को देखा वो डूब गया चांद नजर आया बोले यही अल्लाह है यही अल्लाह है वो भी डूब गया सुबह हुआ तो। अब उन्होंने क्या अंदाज इस्तेमाल किया कि अगर मेरा रब हिदायत मुझे ना दे तो मैं क्या हो जाऊंगा गुमराह कौम में से हो जाऊंगा। एक नबी मान रहा है एक्सेप्ट कर रहा है एतराफ़ कर रहा है कि मेरे पास जो हिदायत है मेरे रब ने दिया है जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा दर्स से शुरू में कि आज कोई लड़का कामयाब हो जाता है तो कैसे क्या कहा जाता है बड़ी मेहनत किया है भाई दिन रात एक कर दिया घूमना फिरना शादी में जाना उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आता है। देखिए नबी का अंदाज देखिए कि काला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ला इल्लम यहदिनी रब्बी अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं कौन क्या हो जाऊंगा लाकुनन्ना मिनल कौमि ज़ालिमीन गुमराह कौम में से मैं हो जाऊंगा। यानी पैगंबर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास जो हिदायत है वो अल्लाह का दिया हुआ है। तो हम क्यों नहीं माने कि भाई कामयाबी और कामरानी और नाकामी अल्लाह के हाथों में है। अल्लाह ने कहा कि हाँ मेहनत करना है लोगों को लेकिन मोमिन की पहचान आप उसके अल्फाज से लगा लेंगे कि उसके पास जो कुछ भी वो कहेगा अल्लाह का दिया। आप ये एग्जाम पास करें अल्लाह करम है करा दिया अल्लाह ताला तो आप हैरान हो जाएंगे कुछ बोल भी नहीं कर रहे। हम आजकल लोग तारीफ सुनना चाहते हैं अब बताना भी चाहते हैं अपने किस्से। पहले के ज़माने में किस्से कहानियाँ किसी के बारे में कौम कहती थी उसके किस्से है उसके किस्से हैं लेकिन आज हम खुद अपना किस्सा बयान करके आपसे सुनना चाहते हैं। अब रिटर्न में आप मेरा किस्सा बयान की थी इज्जत अल्लाह देगा। तो यही चीज़ है कि पैगंबर ने सिखाया कि अल्लाह अगर तू मुझे हिदायत ना देता तो मैं गुमराह कौम में से होता। और उसके बाद देखिए क्या हुआ आयत नंबर 78 फलम्मा रअ शम्स जब सूरज को देखा बाज़िगतन चमकते हुए। अब सूरज जो है चांद से भी ज़्यादा चमक रहा है ऐसा चमक रहा है कि पूरी दुनिया उजाला है ना। चांद की जो रोशनी पड़ती है वैसे नहीं पड़ती। हम लोग देखते हैं चांदनी रातों में कि उजाला लगता है लेकिन अंधेरा भी रहता है लेकिन सूरज के उजाले में अंधेरा नहीं रहता है ना। फलम्मा रअ शम्स बाज़िगतन उन्होंने जब सूरज को चमकते हुए देखा काला तो उन्होंने कहा कि हाज़ा रब्बी ये मेरा रब है। क्यों रब है हाज़ा अकबर ये बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। हाज़ा अकबर ये बहुत बड़ा है सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत जब वो भी डूब गया सूरज जब डूब गया क्या कहा उन्होंने कहा या कौमी ऐ मेरी कौम अपने कौम के लोगों से कहा सूरज डूब गया अपने कौम से कहा ऐ मेरी कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून तुम जिन चीज़ों को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हो मैं उससे बरी। ये तुम्हारा मैटर है हमको बस फंसाना है। इब्राहिम ने कहा था शिरक करो इब्राहिम ने कहा था बुतों की इबादत करो इब्राहिम ने कहा था
उसके सामने सर झुकाओ, अपनी कौम से कह दिया कि अपनी कौम से कहा कि अगर तुम जिस चीज को शरीक ठहराते हो ऐ मेरी कौम, मैं उससे बरी हूँ। बेटी दो आयतें। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। सूरतुल अनआम आयत नंबर 78। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। पानी हो तो बंद कर दिया, बंद कर दो। स्विच ऑफ हो गया है। किसका है?